So during today's topic, will the land sustain? This is a major question, right? Means whether fertility of land that will remain forever, or we are leaving this piece of land in fertile position for our next generation. This was a major question. Okay, because in modern farming method we are using various types of chemicals, we are using hybrid seeds, we are using insecticides, pesticides, and they are harmful for soil. Understand? They increases the acidity or basicity of the soil, and it becomes helpless for nitrogen fixation, and our soil became unfertile. So if we are doing a modern farming, then what is the guarantee that our soil will remain fertile forever, whether our piece of land it will sustain forever or not? This is a major question in this chapter. Clear? So here we have seen that scientific reports indicate that frequent use of chemicals, okay, frequent use of chemicals reduces soil fertility. Okay, soil fertility. Okay, it reduces the soil fertility and it creates our soil means unuseful, isn't it? So there are various things that we have to keep in mind. In many areas, green revolution associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. ठीक है? In green revolution, right? Frequent use of chemicals. ठीक है? Challenge, yes, sustainability, right? This challenge sustainability of the soil. Clear? This is very important thing that we have to keep in our mind. And along with this, continuous use of groundwater for tubewell irrigation. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है? वाटर यूजिंग ट्यूबवेल, है कि नहीं? ट्यूबवेल यूज करते हैं ना, यूजिंग ट्यूबवेल, है ना? वी लोअर्स वाटर टेबल. ठीक है? इससे क्या होगा? वाटर टेबल विल लो, गेट्स लो, पानी का स्तर नीचे चला जाएगा. एंड वट एवर you can say hand pumps we have done boring, they will leave water, they cannot lift water because its water level has gone below. ठीक है? Again we have to do boring, we have to increase its depth, isn't it? Then it can be useful for us. ठीक है? And in this manner, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up many years. ठीक है? इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है? So we have to take care of environment to ensure future development. ठीक है? And maintenance of soil fertility. ठीक है? Soil fertility and water table takes long time. ठीक है? Takes long time. That's why we should be careful about using all these natural items. Understand? So you can say that chemical fertilizers provides minerals which dissolve in water and immediately available for plants. ठीक है? जो हमारे केमिकल्स हैं वो हम लोग जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड योर प्लांट्स
they gets this chemical very quickly, very directly. Understand? That's why we had used chemical fertilizer. But all chemicals are not absorbed by our plants. ठीक है? They may escape from soil and pollute groundwater. ठीक है? Some chemical are not absorbed by plant. ठीक है? Understand? Which later on pollute soil. क्लियर? यही केमिकल आपके सॉइल को पॉल्यूट कर देता है. अंडरस्टैंड? एंड इट बिकम्स अ टिपिकल केस. ठीक है? दैट्स व्हाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो किल्ड. ठीक है? ड्यू टू केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है, आर किल्ड. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यू हैव स्टडीड इन बायोलॉजी. है कि नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर्स. ठीक है? दे आर हेल्पफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है? एज़ोटोबैक्टर, ये बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब हमने इतना केमिकल लगा दिया वो सारे मर गए, तो हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज पॉसिबल? दे विल नॉट गेट नाइट्रोजन एंड योर सॉइल विल बिकम इनफर्टाइल. समझ में आया सबको? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाइएस्ट. सबसे ज़्यादा कंजम्पशन फर्टिलाइजर का पंजाब में है, क्योंकि वो लोग HYV सीड यूज़ करते हैं. दे आर यूजिंग इरिगेशन सिस्टम. ठीक है? तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी शुड बी रिगेन्ड. अंडरस्टैंड? तो अगर सॉइल के अकॉर्डिंग हमने केमिकल नहीं डाला तब वो सॉइल आपकी अनफर्टाइल हो जाएगी. अंडरस्टैंड? इसलिए हमें टेस्ट करना चाहिए, सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए. उसको लैब में टेस्ट करना चाहिए कि इस सॉइल की pH कितनी है. ठीक है? उसकी एसिडिटी ज़्यादा है कि बेसिसिटी ज़्यादा है. हमें इस क्रॉप के लिए इतने pH वाला जो है सॉइल चाहिए. तो उसके लिए आपको जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दे विल गिव यू प्रिस्क्रिप्शन. वो बताएंगे कि यही फर्टिलाइज़र आप डालिए, ये कॉम्बिनेशन करके डालिए, तब उसको डालने से क्रॉप हमारा इम्प्रूव होता है. अंडरस्टैंड? अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय. ठीक है? नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अनदर टॉपिक इज हाउ द लैंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. राइट? दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर. Right? So you had studied that in Palampur higher caste peoples were 80, isn't it? 80 houses were there for higher caste people. They were higher caste people. It means they were rich. They had large holding. ठीक है? They had very big piece of land, isn't it? And the remaining farmers, they had very small land holding. So in 450 families, 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. ठीक है? 150 families, they were very poor, they were landless in Palampur. ठीक है? So you can say out of 450 only 100 means 150 families were landless. ठीक है? So what will happen? These family members, they will work as a agricultural laborer. है कि नहीं? These family members, they have to work on the land of rich farmers who are having large holdings, isn't it? This is natural.
And in this way we can say that remaining families who own land, ठीक है, that is 200 families cultivate small plots land, less than 200 families, ठीक है, families have less area of plot, ठीक है, that is less than how much hectare? 2 hectare, 2 hectares, right? And in this way we can say that their size was very small, है ना? And in 1960 एक स्टोरी है, in 1960 गोविंद was a farmer with 2.25 hectare piece of land. एक फार्मर है, उसके पास ओनली ही हैड 2.25, ठीक है, हेक्टेयर्स पीस ऑफ लैंड, ओके, एंड इट वाज अनइरिगेटेड लैंड, ही हैड नो पंपिंग सेट, ठीक है, ही वाज अनेबल टू इरिगेट द होल लैंड, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई ही सफर्ड अ प्रॉब्लम अगेन. सो विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड. गोविंद हैड 3 sons and they were engaged in cultivation work, understand, all 3 sons, they were engaged in this work and they had to do all agricultural activities, ठीक है. So though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with its little bit of extra income, means their income was very less, understand, and they could survive in very difficult situation, isn't it? Their condition was miserable, है ना? And what happened? They had 1 buffalo, ठीक है? They had possessed and land was divided among his 3 sons. अब जब वो क्या कहते हैं, बाद में क्या हुआ? The whole land was divided among 3 sons, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि अब जो है 2.25 हेक्टेयर, 2.25 हेक्टेयर, this land was divided in 3 sons, so how much get? 0.75 hectare, ठीक है, each son got, so land was divided, है कि नहीं? तो इससे क्या हुआ कि there was poverty. अब उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? 0.75 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड पे, वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अंडरस्टैंड. नाउ दे कैन नॉट ग्रो sufficient for full year, they cannot feed their family full year, means they had to do extra work, isn't it? That's why they were forced to become agricultural laborer. इसलिए उनको मजबूरी में सीजनल वर्क करना पड़ता था. बड़े जो हमारे फार्मर्स होते थे, देयर दे हैड टू वर्क एज अ सीजनल एग्रीकल्चरल लेबरर, ठीक है. तो इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, है कि नहीं? भले ही उनके पास सब कुछ मॉडर्न मेथड है, सब कुछ है, लेकिन लैंड तो डिवाइड हो गया. अब क्या करेंगे? अब 0.75 हेक्टेयर में उनको ग्रो करना है कि नहीं? तो इस वजह से उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल हो गई. सो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, ठीक है. और बहुत सारे हमारे फार्मर्स के जो हमारे प्लॉट्स हैं, दे आर नॉट एट अ सेम प्लेस, दे आर स्कैटर्ड. किसी के पास 0.5 हेक्टेयर यहाँ पे है, 1 हेक्टेयर यहाँ पे है, और किसी को 1.5 हेक्टेयर यहाँ पे है. एक फार्मर का, उसको यहाँ भी जाके कल्टीवेशन करना, यहाँ भी करना, यहाँ भी करना है. ये भी एक प्रॉब्लम थी. लैंड वाज स्कैटर्ड, ठीक है, एक फिक्स जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में सारे लैंड होने चाहिए, है कि नहीं? ये भी एक समस्या थी, राइट. तो इन सारी चीज़ों के लिए मतलब जो है क्या कहते हैं, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर. कुछ ही किसान थे हु हैड मोर देन 10 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्क ऑन द फील्ड्स, जैसे व्हीट क्रॉप है, तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी हैव टू टिल द लैंड, ठीक है, वी हैव टू प्लाउ द लैंड, है ना. पहले हम लोग उसको इरिगेट करेंगे, फिर उसको प्लाउ करेंगे, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे, देन वी विल सो द सीड्स, है कि नहीं. आफ्टर सोइंग द सीड्स वी हैव टू
irrigate once again. Then we have to spray insecticides, pesticides, isn't it? They are agricultural activity, है ना? That is shown in your book. And in early period, people used bullocks. ठीक है? They had to plow their fields using bullocks, animal muscles. Understand? So in this manner, the farming was very difficult. ठीक है? तो हम आपको मतलब we can see that small farmers, ठीक है, उनमें क्या होता था, they were less than 2 hectares. ठीक है? स्मॉल फार्मर्स जो होते थे देवर मतलब जो है उनका एरिया बहुत कम था. ठीक है? एंड दीज स्मॉल फार्मर्स इनका जो है 64%, ठीक है, ये टोटल मिला करके जो है इनका कल्टीवेशन एरिया था. ठीक है? तो 80% हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड था, उनमें से 20% ऐसे थे हमारे जिनके पास मोर देन 2 और 2.5 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड. अंडरस्टैंड? दिस इज योर पाई चार्ट. ठीक है? इसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर. अंडरस्टैंड? मीन्स दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर. राइट? Who will provide the labor. Clear? Labor, from where labor comes. Understand? From which community labor will come. This was a question. So after land, labor is the next necessary. Okay? And farming requires great deal of hard work. So small farmers with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming. ठीक है? तो small farmers after cultivating their own field, right? They provide laborers. Clear? They provide laborers. Clear? So in this way, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि फार्म लेबरर्स केम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लांट्स. ठीक है? एंड सेकंड कहाँ से आते थे? फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. ठीक है? ऑल्सो वर्कड एज लेबर. है कि नहीं? लैंडलेस फैमिलीज में जिनके पास लैंड नहीं होता, दे वर लैंडलेस. लेस वर्ड लगा है ना, तो दोज हु हैड नो पीस ऑफ लैंड, दे हैव टू डू लेबर वर्क. ठीक है? एंड in this way, crops grown on the land and instead they are paid wages by the farmer for whom they work. ठीक है? They are given wages. ठीक है? उन्हें मजदूरी मिलती थी. Understand? फ्री में थोड़ी कोई काम करेगा. कितने दिन तक कोई काम करेगा फ्री में? They must get some wages, है ना? तो all these farmers were paid wages from the people who had employed them, and wages were in cash or in crop. ठीक है? Many farmers they could not give wages in cash. है कि नहीं? Most of them they had to give them food grains. उनका पहले डिसाइड हो जाता था कि I will give this much food grain for full day. If you are agree, then you are welcome. Isn't it? So it was a question, and along with this, these wages were widely from region to region, from crop to crop. ठीक है? Wages varied from region to region and crop to crop. अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सा क्रॉप है वो. ठीक है? भाई पता लगा कि मैज का जो है उन्होंने फार्मिंग किया तो उसमें व्हीट थोड़ी दे देंगे. मैज की भी है फार्मिंग तो मैज ही देंगे. है कि नहीं?
और क्या कहते हैं इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं वेजेस, हाँ, रीजन टू रीजन, हर रीजन का अपना कस्टम होता है। कोई दूसरे तरीके से करेगा, कोई दूसरे तरीके से, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। कुछ कहेंगे कि जो है हम इतना पैसा देंगे प्लस दिन भर का खाना देंगे, नाश्ता देंगे, और भी जो चीज़ चाहिए वो देंगे, है कि नहीं। ये भी उनका जो है अपना अपना सिस्टम है हर एरिया के लोगों का, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और क्या होता था, वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। मीन्स some farmers told that you have to work only 4 hours because we have less work. You come at 10 o'clock and you can depart at 2 o'clock. Some farmers tell that you have to come at 8 o'clock and depart at 4 o'clock. This is our wages, है कि नहीं। सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता था, ठीक है। रेनी सीजन में इसका ड्यूरेशन और चेंज हो जाता था, है ना। सो दे हैड डिफरेंट ड्यूरेशन टाइमिंग, उसी हिसाब से उनके वेजेस होते थे। भाई ज़्यादा दिन का काम होगा तो ज़्यादा पैसा देंगे, है कि नहीं। 2-3 घंटे का काम होगा तो कम पैसा देंगे, होता कि नहीं होता। ये हर जगह होता है, अभी भी होता है। So a farm laborer might be employed on a daily basis or one particular activity like harvesting or the whole year. कुछ फार्मर्स तो अपने यहाँ लेबर्स को जो है पूरे साल भर के लिए रखते हैं, जैसे पंजाब में, क्योंकि उनसे सारे काम कराते हैं। एंड सम फार्मर्स दे हैव टू एम्प्लॉय इन ओनली सीजन। जब तक बुआई का काम चल रहा तब तक लगा लिए, जब तक हार्वेस्टिंग का काम चल रहा तब तक लगा लिया, है कि नहीं। एंड व्हेन दिस वर्क इज ओवर देन दे वर लेफ्ट, है कि नहीं। दे हैड टोल्ड क्विट देम, राइट। तो ये सब अलग अलग फार्मर था। जैसे यहाँ पे एक लेडी है डाला, ठीक है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस, ठीक है। ये डेली वेजेस का काम करता है डाला, ठीक है। और पालनपुर में ही है। एंड दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, ठीक है। अब उसको रोज वर्क देखना पड़ता है, कहाँ आज काम मिलेगा। रोज जाके खड़ा हो जाता था मार्केट में और डेली उसको कोई ना कोई हायर कर लेता था, है कि नहीं। तो उसे डेली नए नए काम की तलाश रहती थी हर रोज, ठीक है। मीन्स द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट वाज ₹115। अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने लेबर के जो चार्जेस फिक्स किए थे वो 115 पर डे, ठीक है। इतना दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको सरकारी काम में मिल रहा है लेबर का काम, ठीक है, राइट। बट डाला गेट्स ओनली ₹80। डाला को क्या होता था, 80 रुपया मिलता था, 115 की जगह 80 रुपीज़। क्यों? क्योंकि डाला की तरफ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो अपना पैसा बचाते हैं, है कि नहीं। दे टोल्ड दैट इफ़ यू आर रेडी टू डू वर्क एट 80 रुपीज़ देन कम, अदरवाइज आई विल हायर अनदर पर्सन, है कि नहीं। तो इस तरीके से डाला का एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि नहीं, उसका शोषण हुआ, राइट। एंड इन दिस वे देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग फार्म लेबरर, ठीक है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस बिकॉज ऑफ मोर कंपटीशन, है कि नहीं। देयर वाज मोर कंपटीशन, ठीक है। मोर कंपटीशन reduced wages of laborers, ठीक है। जो लेबरर्स के वेजेस होते थे जब कंपटीशन बढ़ जाता था तो रिड्यूस हो जाता था। पता लगा कि 2 आदमी की ज़रूरत है और 20 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी सोचेगा भाई हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी को भी 2 आदमी को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ही विल बार्गेनिंग करेगा। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो वेजिटेबल शॉप पे, तो कहता है कि आलू 40 रुपये किलो है, तो आप लोग क्या कहते हो, 35 में देना लो, नहीं तो जाओ, कहते हो कि नहीं कहते हो, है कि नहीं। इन सिमिलर वे यू हैव टू बार्गेन इन ग्रोसरी शॉप ऑल्सो इन मेनी प्लेसेस। सिमिलरली जो लार्ज लैंड होल्डर्स दे ऑल्सो बार्गेन इन केस ऑफ लेबरर,
वो भी कहेंगे भाई जिसको 80 रुपीज़ में काम करना चले आओ, है ना। तो 20 लोग हैं जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको कई दिन से काम नहीं मिल रहा है, वो तो रेडी हो जाएगा कि भाई जो मिल रहा वही सही है कि नहीं, क्योंकि और लोग भले नहीं रेडी हो रहे हैं लेकिन उसको 2 ही आदमी चाहिए, और कोई 2 आदमी तो कोई ना कोई तैयार हो ही जाता है। तो ये बात है। तो इन दिस वे बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला एंड रामकली बोथ आर वेरी पुअरेस्ट पीपल, ठीक है। क्यों पुअरेस्ट हो गए? क्योंकि उनके वेजेस बहुत पुअर हैं, है कि नहीं। ऊपर से उन्होंने लोन ले रखा था। यू कैन स्टडी दिस स्टोरी, ठीक है, इसको घर पे पढ़ना सब लोग, अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो है मुझे काम ढूंढना पड़ता है, इट इज सीजनल वर्क, ठीक है, एंड आफ्टर इवन आफ्टर वी आर बार्गेनिंग, वी आर गेटिंग लो वेजेस, आई हैव ऑलरेडी टेकन लोन फ्रॉम दिस लार्ज फार्मर, आई एम अनएबल टू पे। Similarly, Ramkali is also telling her, grief. Understand? So in this way, we can consider that all these peoples, they are poor farmers. Okay.